Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter, history. History chapters are generally big ones, no? Because a lot of informations are there and a lot of points are there that needs to be covered. Framing history in itself is a Herculean task. It's a big task to make history and to, I mean, I'm sorry, to make history in a way that it seems to be factual. Facts होते हैं, आपको सब गलत informations नहीं दी जाती है. Please try to understand these are not the wrong informations if it is there in the book. So always remember that it might be having some informations. It might be having some of the some informations that are there are very well researched. That is there. Okay. So back to the chapter, the last video, what we had done is we were talking about civil disobedience. Civil disobedience, how it had started, how the Salt Law was broken, Gandhi March, participation of the people, participation of the people who were away from the sea. भाई सॉल्ट टैक्स तो वहीं पे, सॉल्ट लॉ तो वहीं पे ब्रेक करेंगे जहां पे समुद्र है ना, वहीं पे सॉल्ट बना सकते हैं. सो वी रेड अबाउट सम ऑफ द लीडर्स लाइक खान अब्दुल गफार खान एंड द इंसिडेंट इन द नागपुर रीजन, all these things that are there. When we are talking about it, we understood how forceful the movement was. Civil disobedience movement was very forceful. Britishers were into trouble. किसी तरह से इसको शांत करना चाहते थे. As a result, महात्मा गांधी को यहां से इन्होंने हटा दिया. They removed महात्मा गांधी from here. Yes, क्योंकि एक्चुअली महात्मा गांधी की वजह से they were quite troubled. उनको ये समझ में आ रहा था that किसी न किसी तरह से अगर महात्मा गांधी को नहीं हटाएंगे तो द मूवमेंट कैन टेक अ वेरी वेरी a turn जहां पे कि हो सकता है that the Britishers had to leave India. The movement can go to such an extent because we have seen the participation by the rich peasants, participation by civil disobedience movement में हमने किसका participation देखा? Rich peasants, jats of rich peasants, poor peasants. ठीक है. Business class. इस बारी what had happened is that the money people were also involved in the civil disobedience. They also wanted, काफी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ रहा था. तो it was a very choking experience for them. सिंपल लैंग्वेज में जब इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो दम घुटने वाला माहौल था उनके लिए भी. चोकिंग एक्सपीरियंस. इससे वो बाहर आने के लिए they were actively participating in the civil disobedience. लेकिन what has happened is the civil disobedience movement, it was at its peak, बिल्कुल टॉप पे था, and suddenly महात्मा गांधी withdrew the movement. Withdrew नहीं, actually he has to participate in the second round table. वो भी करना था, वो भी जरूरी था. We can't blame महात्मा गांधी, यहाँ blame नहीं कर रही हूँ, but what has happened is कि movement had an impact. Movement had an impact. इसमें we have also read about the industrial workers. Okay, and dock workers. Got it? And yes, railways में जो काम करते थे, railway workers. Please understand that everybody was actively involved.
हर तरह से जिसको जहां मिल रहा था वो सिविल डिसोबीडियंस में दे वर पार्टिसिपेटिंग. दे वोर द गांधी कैप, गांधी जी का नाम का नारा लगाया, गांधी जी के बारे में बताया, गांधी जी का मैसेज को पास किया. तो दीज थिंग्स कांट बी इग्नोर्ड. इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू एड्रेस. इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान से देखना ही पड़ेगा. And strikes was there by the railway workers, dock workers, 1930-32. थोड़ा सा try to remember the dates because it's history. So if you support your answer with the help of dates, that would be good for you. Got it? अब क्या है वन कैटेगरी जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, which we are discussing today is participation by women. पहली बार नहीं, एक्चुअली क्या होता था, एवरी टाइम विमेन वेयर अ पार्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट्स दैट वेर बीइंग लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. लेकिन दिस टाइम विमेन पार्टिसिपेशन वाज वेरी एविडेंट. बहुत ही खुल के नजर आ रहा था, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा था कि यस, विमेन आर ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट. दिस मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज गॉट अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस. बाहर से लोग आए थे सॉल्ट मार्च को कवर करने के लिए. बाहर से मीन्स लंदन से पीपल हैड कम, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से. तो दिस मूवमेंट वाज हैड लॉट ऑफ मोमेंटम. बहुत स्पीड के साथ ये शुरू हुआ था एंड ब्रिटिशर्स वेर इनटू ट्रबल. बार बार यही चीज कह रही हूँ. तो अब इनका रोल क्या था, व्हाट डिड दे डू? सॉल्ट मार्च के टाइम में विमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू महात्मा गांधी. During Salt March, women came to listen. वो जब रात में जहां हॉल्ट करते थे ना, वहां पे he used to inspire the people, he used to motivate the people to participate in the movement. Motivation for participation in a very non-violent manner. याद रखना. Yes. Major catch mark of his movement was non-violence, non-violence and non-violence. Violence का किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं. Okay? And और भी चीजें इन्होंने की. They participated in the protest and marches. They participated in protest marches, मेकिंग सॉल्ट. नमक कानून तोड़ा है ना, तो अब ब्रिटिश नमक तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो कुछ हमारे को अपना भी तो बना हुआ नमक, भाई बिना नमक के तो खाना इज नॉट पॉसिबल. सो सम होममेड क्या मतलब कंट्री मेड सॉल्ट हैज टू बी देयर. सो मेकिंग सॉल्ट, पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ and liquor shop. Got it? You know, can you believe that many women went to jail also? Urban areas में the high caste families, women who were there, they went to jail. रूरल एरियाज में रिच जमींदार के घर की जो औरतें थी, they also participated. तो गांधी जी कॉल, they considered it as their role. It was their duty. They considered it as a duty to participate in the movement. Sacred duty, in fact, बुक पे यही दिया हुआ है that it was a sacred duty. बहुत ही जैसे कि serving to the nation, सेवा करने की तरीके का था कि आप देश की सेवा कर रहे हैं इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके. That was the call of the hour.
And that was the power of the women movement, women's participation. Got it? Then what happened? Position of women बहुत ज्यादा चेंज नहीं. गांधी जी was convinced that women should look after home and her. ये गांधी जी को थोड़ा सा लग रहा था. गांधी जी ये गलती नहीं हम कह रहे हैं. गांधी जी wanted women to look after home and her. चूल्हा चौका. Okay? And be good mothers and good wives. अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि ये क्या बात हुई. औरतों को वो घर में रखना चाह रहे हैं, औरतों को वो बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं. With a developmental kind, the people who will be thinking in a different kind of manner that अच्छा औरतों को घर में रहना चाहिए, काम औरतों को घर से बाहर नहीं आना चाहिए. No, this was actually the movement that was being carried on. Please understand. ये जो माहौल चल रहा था, ये जो मूवमेंट चल रहा था, this was majorly meant to signify that women should stay at home, because the kind of movement that was being carried on by Mahatma Gandhi was very risky. काफी उसमें आपको मतलब नॉन वायलेंस है ना. यू कैनॉट रेज एन आर्म. आप तो हथियार उठा नहीं सकते हैं. हथियार उठाने का काम तो ब्रिटिशर्स का है. इनफैक्ट नो इंडियंस वाज रेजिंग द आर्म्स. तो जब नॉन वायलेंस है, अचानक से लाठीचार्ज हो गया तो औरतों को कहीं चोट ना पहुंचे. दैट वाज द मेजर आइडिया. इफ द विमेन आर हर्ट तो दैट इज नॉट गुड. औरतों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं दे रहे हैं. तो देन व्हाट हैपेंड, बिलीव मी चिल्ड्रन, व्हेन सम सत्याग्रह मूवमेंट्स वर देयर, व्हेन लाठी चार्ज वाज देयर, दीज विमेन सर्व्ड एज नर्सेस. मर्दों को जब चोट लग जाती थी, बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाना होता था, इमीडिएट मेडिकेशन की जरूरत है, एट दैट टाइम दीज विमेन वेयर देयर, बिकॉज दैट इज देयर. लाठी चार्ज इज देयर, सो मेनी पीपल डंडा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन मार सकते नहीं है. गांधी जी की पॉलिसी है ना. दैट इज देयर. सो दिस वाज द विमेन पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन. लेकिन बहुत ज्यादा, इफ वी से दैट लॉट ऑफ पावर वाज गिवन टू द विमेन, ऐसा नहीं था. पावर बाद में धीरे धीरे, ग्रेजुअली एंड स्लोली बाद में पावर मिला है. लेकिन इनिशियली जो है, बीच में जो टाइम था, थोड़ा सा पावर उनको कमी था, बट सिंबॉलिक प्रेजेंस था. ये दिख रहा था कि विमेन आर देयर, विमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. दिस वाज वेरी एविडेंट. अब क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो खत्म हो गया. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिनिश्ड, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ. द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. सच अ लार्ज स्केल मूवमेंट. सक्सेस मिलनी चाहिए थी, सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया. ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑफ सच एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, बिकॉज अब क्या था, मेनी सोशल ग्रुप्स वेयर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. मतलब स्वराज का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहा था. मेनी ग्रुप्स वेयर नॉट कन्विंस्ड with the abstract concept of Swaraj. Please understand abstract. Something that is non-existent. हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रूप क्या होगा, वो स्वराज कैसा होगा,
if the Swaraj people are getting the Swaraj, if the Britishers agree, so what would be the benefit to the people? Things should be clear. Gandhi ji, the people have given the slogan of Swaraj. स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल स्वराज नहीं क्लियर था. इसमें क्या था? वन सच ग्रुप वॉज अनटचेबल्स. छुआछूत की बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रही है, हमेशा से रही है. They were always calling themselves as Dalit or oppressed. Dalit, जिनको हमेशा दल के दबा के रखा गया. They always they were calling themselves as Dalit or oppressed group. So they called themselves as Dalit और ऑप्रेस्ड, जिनको बहुत दबा के, बहुत सता के और बहुत परेशान करके हमेशा से रखा गया है. तो ये ग्रुप जो है, इट वॉज वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स दिस मूवमेंट. अब इनका मन नहीं कर रहा था मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का. अपार्ट फ्रॉम दैट, कांग्रेस में देयर वर सम हाई कास्ट हिंदूज इन कांग्रेस. अब समझो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई. इन कांग्रेस दे हैव इग्नोर्ड द दलित्स for fear of offending the Sanatanis. Congress ignored Dalit. क्यों? For fear of offending. अब Sanatanis कौन थे? Who were Sanatani? Please understand. These were the people who were following and propagating and promoting ancient Indian culture. According to them, अगर दलित हैं, अगर लोअर कास्ट हैं, तो हाई कास्ट हिंदूज सेड कि इनको अलग रखना है. इफ दे आर इन कांग्रेस, अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं, दे आर मेंबर्स, तो हम फिर कांग्रेस में नहीं रहेंगे. लेकिन महात्मा गांधी सेड कि स्वराज अगर चाहिए तो untouchability has to be eliminated. Sanatanis were high caste Hindus. ये भी समझना, हाई कास्ट हैं तो अमीर होंगे. मेजरली पहले यही होता था. द हाई कास्ट पीपल हु आर देयर, जमींदार हैं, तालुकदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, रिच पीजन्स हैं, दे वर फ्रॉम द हाई कास्ट. तो कास्ट सिस्टम तो इज वेरी प्रोमिनेंट, यू नो इट वेरी वेल इन इंडिया. तो गांधी जी सेड कि अनटचेबिलिटी हैज टू बी एलिमिनेटेड. फॉर सक्सेस ऑफ स्वराज, जो नारा लगाया है वो नारा खाली घर में बैठ के बोलने के लिए थोड़ी लगाया है. इट हैज टू बी ब्रॉट इन अ फॉर्म वेयर एवरीबडी फील्स कि हाँ सही है, हमारे साथ न्याय हुआ. So, for success of Swaraj, Gandhi ji said that untouchability has to be eliminated. अनटचेबिलिटी की जो बात करते हैं, उन अनटचेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा. तो उसके लिए ही स्टार्टेड अ मूवमेंट. ही हैड टू, बिकॉज ही वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज बीइंग डन. देखो जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, और आज से नहीं हो रहा था, बहुत पहले से हो रहा था. इट वॉज हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो गांधी जी, इट वॉज अ वेरी डीप रूटेड थिंग. अनटचेबिलिटी इज अ डीप रूटेड थिंग इन द इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को हटाना वॉज अ बिग टास्क. नोबडी वॉज रेडी फॉर दैट. उसके लिए सबको मना पाना. सो गांधी जी
called Harijans as the children of God. Got it? And he organized Satyagraha. सत्याग्रह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर दैट देम एंट्री इनटू टेम्पल, क्योंकि पहले लोअर कास्ट पीपल वेर नॉट अलाउड द एंट्री इनटू द टेम्पल. एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो आम आदमी का जो कुआं है जहां से पानी ले सकते हैं, दे कांट हैव वाटर. प्यासे मर जाएंगे लेकिन हाई कास्ट पीपल विल नॉट गिव देम वाटर. क्या है ये? हाउ कैन वी जस्टिफाई सच अ थिंग? आई मीन, इजंट इट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? This is against humanity, but then people practiced it. Believe me, children, people practiced it. That was the lacuna of the Indian society. कि इसके बाद भी लोग इसको मानते थे, लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे थे. So he started सत्याग्रह. इन्होंने कहा ये हटाना for their entry into temples and all public places. They were banned from all the public places. Public places means where high caste people are there. दूर रहो, छूना नहीं है, अलग थलग रहना है. तो अब ये देखो एवरी टाइम वी से दिस थिंग, गांधी जी को दोनों तरफ से लड़ाई करनी पड़ रही है. एक्सटर्नली ही इज फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स, इंटरनली ऑल्सो अपने लोगों के साथ भी तो लड़ाई ही कर रहे हैं. हाई कास्ट हिंदूज के खिलाफ ये सत्याग्रह था ना. दिस सत्याग्रह वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दिस वाज अगेंस्ट द हाई कास्ट हिंदूज हु बिलोंग हैपेंस टू बी इंडियंस, वेरी मच द इंडियन पॉपुलेशन who are strictly practicing caste system. Are you understanding? So that is there. So he himself, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हरिजन्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, तो आई एम ऑल्सो हरिजन. सो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स. सुबह सुबह किसी के भी कुछ लोग थे, उनके घर में घुस जाते थे और वो वॉशरूम क्लीन करने लगते थे. तो दे यूज्ड टू से, आप क्या कर रहे हैं, महात्मा है आप? ही सेड नो नो, आई एम ऑल्सो हरिजन, आई एम हरिजन. एंड दलित लीडर्स were keen on a different political solution to the problem of the community. Dalit group wanted a permanent solution. Clearly they said, आपके वॉशरूम क्लीन करने से क्या हमको हमारे अधिकार मिल जाएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज व्हाट इज वेरी क्लियरली मेंशनड हियर कि दे वांटेड पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. आपके वॉशरूम क्लीन करने से हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है. सो दे वांटेड अ परमानेंट सॉल्यूशन एंड इन अ पॉलिटिकल मैनर. अब हमको हमारे हक चाहिए. अब लड़ाई शुरू हो गई. तो उसके लिए व्हाट डिड दे वांट? दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Got it? And separate electorate that would choose, वो अपने leaders को खुद select. So students, we tried to understand the limits where the social groups were moved by the abstract concept of Swaraj, and how Dalits were incorporated into all these movements. Satyagraha was organized, and temples and public wells, tanks were cleaned. Sin of untouchability were there, but the major demand that was there was political rights. Dalits till now has been separated
by the mainstream. So, it was for the first time asked by the Dalits to unite them into the mainstream, that is, with the upper class. So, this is what we have understood. Rest we'll be doing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.